So today we'll discuss potential due to a non-conducting solid sphere. Potential due to a non-conducting solid sphere. Potential due to a non-conducting solid sphere. Potential due to non-conducting solid sphere. Here, so we find V outside, then we will find V on the surface, and then we will find V inside. Clear? Three cases: first, second, third. So we'll complete one by one. So what? Consider a solid sphere of radius r. So r is the radius of solid sphere. R is the radius of solid sphere. Here r is the radius of solid sphere, and rho is the charge density. Rho is the charge density, and Q is the total charge, which is equal to 4 by 3 pi r cube into rho. Is that okay? Is that okay? So this is the total charge density. So consider a point. So first case, and charge is uniformly distributed all over the world. Charge will be positive or charge will be so this is the distribution of charge. So first case, outside. So this is the solid sphere, r radius, and this is a point P at a distance r from the center of the sphere. So you have to find potential at point P. So what? Vp is equal to minus integration infinity to r e dot dr. So electric field at point P, EP, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is electric field, and you know electric field is in this direction. Clear? Sorry, electric field is in this direction. Clear? And dr will be in this direction, and also there will be this direction, na? Clear? And also dr will be negative, ना? So इसको आप करोगे तो क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा माइनस E माइनस फिर dr एंड cos ऑफ 180 डिग्री. तो ये माइनस में इसका कंपनसेट कर जाएंगे ना, तो बचेगा क्या? सिंपली इंटीग्रेशन माइनस E dr और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r ये बात समझ क्लियर? सो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक बार देखना पूरा आ रहा है क्या बनाना, q अपॉन r स्क्वायर dr. सो इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ले लो बाहर, इंटीग्रेशन बाबू 1 अपॉन r स्क्वायर dr which is equal to minus q upon 4 pi epsilon naught r to the power minus 1 plus 1 by r 2 plus 1 and infinite to r. So सॉल्व करोगे बेटा क्या होगा? v p is equal to minus q upon 4 pi epsilon naught with minus साइन और माइनस, और देखिए ये माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना बाबू, तो कैंसिल कर दिया तो हो गया क्या? 1 by r and infinity to r which is equal to q by 4 by epsilon naught 1 by r minus 1 by infinite, and 1 minus this goes to 0. So q upon 4 by epsilon naught 1 upon r. This is the electric field at a point which is outside. This is the, so what? V outside is equal to q upon 4 by epsilon naught 1 upon r. Clear? या ऐसे लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. q is the total charge. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है conducting, so electric field to non-conducting solid sphere. Clear? is same as a point charge kept at the center. यानी सेंटर में पॉइंट चार्ज रखो और उसको जैसे पॉइंट पे पहले पोटेंशियल फाइंड करो, या ये स्फीयर है आउटसाइड में कोई पॉइंट है वहां पोटेंशियल फाइंड करो. दे आर सेम मींस यू कैन रिप्लेस दिस स्फीयर विद a point charge kept at the center. if point is outside, this is only valid when the point is outside. So if your point is outside, you can replace a solid sphere with the
पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट। सेम लैंग्वेज लिखोगे और ये लिखो। कर लिया, ये क्लियर चीज है सबको? हाँ, गुड। सो आउटसाइड ये होगा, क्लियर? तैयार है ना डांट खाने के लिए तुम लोग? पहले बता देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ पूछने वाला तुम नहीं बताओगे, फिर मैं जहर दूंगा, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ तैयार रहो। मुझे मालूम है तुम लोग करोगे। सब बाबू ये हो गया, ये तो आता है सब। तैयारी लेते हैं आपका रिजल्ट इसका। बी आउटसाइड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r। अभी इनसाइड देखते हैं, सॉरी बी ऑन द सरफेस। तो क्या करोगे? सिंपली आर को क्या करोगे बाबू? बी ऑन द सरफेस क्या होगा? सिंपली आर को क्या करोगे? दिस आर इज डिफाइंड बाय कैपिटल आर ना। मान लो कि ये ऐसा कुछ है, तो ये था, यहाँ पॉइंट लिए थे, तो पी था, यहाँ भी पी निकाला था, तो ये आया था। अब सरफेस लेना है तो क्या होगा? फॉर सरफेस आर इक्वल टू आर ना, सिंपली व्हाट? वी सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। क्लियर? तो ये भी मालूम है, वी सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लफड़ा तो तब जब अंदर घुसेंगे, सारी फिजिक्स वही आती है, लेकिन अंदर वाला है, मजा आता है करने में। देखो कैसे। तो ये हो गया बाबू। अब इनसाइड करते हैं आपको। क्लियर? इनसाइड, क्लियर? वी इनसाइड ऑन द सरफेस। क्लियर हुआ सबको? ऑन द सरफेस वो इंटीग्रेट करो, यही आएगा यार, एक हम बार नहीं करना होता है। क्लियर? ऑन द सरफेस वाला क्लियर है सबको? बोलो गुड। सो वी इनसाइड इक्वल टू आर करेंगे। देखो अब क्या होगा? वी इनसाइड करने के लिए दो तरीके हैं, मैं दोनों कराऊंगा। क्लियर? दो तरीके हैं, दोनों जानोगे, पेपर में एक भी याद रहा, काम चल जाएगा। सो दिस इज योर सॉलिड स्फीयर एंड चार्ज इज फुली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बल्क। वही लो, इसीलिए नहीं बताता हूँ, नहीं समझा नहीं प्लीज। मैंने पढ़ लिया तो याद तो ध्यान पे नहीं करेगा। So this is your non-conducting solid sphere and charge is fully distributed, and there is a point inside. Let us assume P, and this is the center. And separation is R. Separation is R. And the question is find potential. So Vp is equal to what? क्लियर? तो दो तरीके हैं बाबू, दो तरीके हैं करने के। एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्लियर, यानी ये यू में अप्लाई दो टू फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला इज दिस v इज इक्वल टू, सो dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। यू में आल्सो अप्लाई v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस e डॉट dr और इनफाइनाइट टू r। देयर आर टू फार्मूला। तो यहाँ से भी करके सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ से भी करके सेम रिजल्ट आएगा। और आई टी बोथ कंसेप्ट है ना, बोथ थियरी है कि नहीं? क्या होगा? कभी ये बुझ जाओगे, ये बुझ जाएगा, ये करने से ये कंसेप्ट बन जाएगा। क्लियर? सो पहले ये वाला कर लेते हैं, बाद में ये वाला अपन करेंगे। क्लियर? तो होगा क्या बाबू? ये वाला करते हैं फिर। तो दिस इज द फर्स्ट रूल एंड द सेकेंड रूल, but this is the easy one and this is the tougher. But if you are talking for about concept, so ये ज़्यादा conceptual है, इसमें ज़्यादा concept चाहिए। इसको करने के बाद ना बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। and this is very easy है कि नहीं? ये थंबनेल टाइप का है, तो सीधा रखो और इंडिकेट करो। फील नहीं आएगा इसमें, फील नहीं आना, इसमें फील आएगा। यू कैन फील दिस। तो देखो ये वाला करो तो होगा क्या? सो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r e डॉट dr। इसको मैं आप सीधा ना माइनस प्लस कॉस 180 डिग्री का सीधा लिख देता हूँ। क्या? इंटीग्रेशन e dr। अब बार बार तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इनफाइनाइट टू r। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इनफाइनाइट से, यानी चार्ज को ही बार ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट
to a point inside the bulb ना, you are bringing a charge from infinite to inside in the bulb, clear, inside the bulb, clear, यानी कि यहाँ पर infinite से यहाँ पर चार्ज ला रहे, clear, यहाँ पर चार्ज ला रहे तो क्या होगा, है कि तो वर्क डन कितना होगा यहाँ से infinite से, क्लियर, यहाँ चार्ज लाने में कितना वर्क करोगे उसी वर्क पे क्या बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब तक होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है हमें, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब देखो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इफ दिस इज a sphere, this is a sphere and this is the non conducting mode, so electric field inside कितना होता है बाबू, someone will tell me electric field inside, Ankit, electric field inside the solid sphere non conducting, it is Q r by 4 pi epsilon naught r cube, यही ना अनितीश तू बोल, rho r upon 3 epsilon naught. क्लियर, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दे आर सेम, मुझे याद नहीं है, जैसे तुम लोग बोल रहे हो मैं मान रहा हूँ, मुझे याद नहीं है ना, ये याद है ना, ये याद है, क्लियर, सो बी सी ओ, सो क्यू आर अपॉन 4 pi epsilon naught, इतना जान, हाँ इतना पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड is directly proportional to r, where r is the distance of point from the center, clear, and E outside is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर ना, क्लियर, इसका E outside क्या है बेटा, U outside is equal to directly proportional to 1 upon r स्क्वायर, इसका मतलब होगा कि इनसाइड डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द separation, dependence of electric field on the surface is different inside and outside, inside it is directly proportional to r and outside it is directly proportional to 1 upon r square, इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा अलग अलग फंक्शन है ना, अलग अलग फंक्शन है, अब क्या होगा इनफाइनाइट से पॉइंट पी पे आ रहे हो तो क्या होगा बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग का अलग नेचर है, अंदर में अलग नेचर है, तो होगा कि मान लो कि हम क्या करेंगे ऐसे ब्रेक कर, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ एक इंटीग्रेशन का रूल होता है, इंटीग्रेशन 2 to 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 to 3 प्लस इंटीग्रेशन 3 to 5, ब्रेक कर सकते हो, ये रूल्स होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है, यानी कि एक बार 2 से 5 2 to 5 इंटीग्रेट करना है, तो एक बार क्या करो 2 to 3 इंटीग्रेट कर दो, एक बार 3 to 5 इंटीग्रेट करो, क्या होगा सेम ही सम है ना यार, मान लो कि ये सम करना है, मान लो ये सम करना है, क्लियर, तो या तो इसका सम ले लो या तो इसका और फिर इसका सम ले लो, वही क्या है मैंने, क्लियर, यानी कि 2 to 5 इंटीग्रेट करना है तो यार 2 to 3 इंटीग्रेट कर दिया प्लस 3 to 5 इंटीग्रेट करो, क्लियर, अरे बात समझ, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट करके इस फंक्शन को 0 to इनफाइनाइट आ रहा है यानी कि इनफाइनाइट टू r आ रहा है, तो हम क्या होगा आउटसाइड यानी कि देखो यहाँ से यानी कि इनफाइनाइट टू r यानी कि इनफाइनाइट से सरफेस क्या हो गया, ये क्या वही है ना इनफाइनाइट टू r, you are coming from infinite to the surface, so here electric field is 1 upon r square dependence and now r to r यानी कि आप सिर्फ सरफेस से अंदर जा रहे हो इस पॉइंट पे, the electric field is directly proportional to r ना, तो हम इसको दो पार्ट में डिपेंड करेंगे, एक बार क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक बार ऐसे, तो यानी पूरी जो इंटीग्रेशन है ये वाली, चलो लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो, सब आप देखो, तो दिस इज योर स्फीयर, रेडियस r and there is point P at a distance r, and this is infinity, so you know E outside यानी कि E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 upon r square, when r is greater than r ना, and E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q r upon r cube, when r is बोलो हाँ इक्वल टू यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी सेम है, यहाँ ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, क्योंकि यहाँ भी रखोगे तो सेम आएगा, यहाँ भी रखोगे तो कट वही आ जाएगा, क्लियर, यानी कि यहाँ पर दोनों रूल रहेगा, क्लियर, तो होगा क्या बाबू,
हमने क्या करना है कि v इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इनफाइनाइट टू r e डॉट e dr। क्लियर। तो इसको स्प्लिट करेंगे बाबू कैसे बताया था, माइनस इनफाइनाइट एक बार r तक इंटीग्रेट करेंगे e dr और फिर माइनस r टू r इंटीग्रेट करेंगे e dr। तो क्या, बिकॉज इलेक्ट्रिक इज डिफरेंट। क्लियर। आउटसाइड इज डिफरेंट एंड इनसाइड इज डिफरेंट। गॉट माय पॉइंट। सो करो इसको, होगा क्या बाबू, माइनस इनफाइनाइट टू r हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर dr with minus sign and r to r and 1/4 pi epsilon naught here q r upon r q dr। so what easy है। so v equal to minus and 1/4 pi epsilon naught q बाहर ले लो। क्लियर। बाबू होगा क्या, इनफाइनाइट टू r and 1/r square dr। क्लियर। प्लस सॉरी माइनस and minus 1/4 pi epsilon naught q upon r cube integration r dr and r to r। so what is equal to minus 1/4 pi epsilon naught q and this is r to the power minus 1 plus 1 by minus 1 plus minus 2 plus 1 and infinite to r minus 1/4 pi epsilon naught q upon r cube and r square r plus 1 r 1 plus 1 upon 1 plus 1 and r to r। clear। so minus 1/4 pi epsilon naught q and ये माइनस बाहर ले लो, गायब कर दो इसको, ये हो जाएगा 1/r और इनफाइनाइट टू r। कोई दिक्कत। क्लियर। माइनस एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब है ना बाबू, और ये हो जाएगा r टू द पावर 2/2 एंड r टू r विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, हटा दो इसको, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। एंड 2 बाहर ले लो, इधर कितना होगा, ये 8 हो जाएगा ना, ये 2 बाहर ले लो तो q अपॉन r क्यूब बचेगा कितना, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ना, यही होगा ना। r ये बात समझ, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है। ये क्या है, ये कैपिटल आर होगा ना यार, लिमिट वही है ना। क्लियर। अब अरेंज करो इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, और ये क्या होगा, r स्क्वायर अपॉन r क्यूब माइनस माइनस प्लस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन r। तो परेशानी है, मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या होगा बाबू, हाँ ये क्या है, ये देखो दे आर सेम ना, तो सम कितना होगा बताओ तो इनका सम कितना होगा, ये 1/8 पे एप्सिलॉन है और ये 1/4 पे एप्सिलॉन है, कितना सम होगा इसका, बोलो। अबे 2 एलसीएम हो जाएगा ना, तो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। q अपॉन r, इतना तो आना चाहिए तुम्हें मैथमेटिक्स। इक्वल टू 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। q अपॉन r माइनस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट q r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। कोई दिक्कत, करो बाबू, जल्दी करो। कर लिया बाबू, डन कर लिया, नहीं बोल ली, गुड। तो समझ आया बेटे कैसे कैलकुलेशन हुआ, बोलो। पेपर में कर लोगे ना, पेपर में नहीं कर पाओगे ना, नहीं बोल रहे हो कुछ, शक है। हाँ कर लो, गुड, यही होना चाहिए। मुझ पे बेइज्जती करते हो यार तुम लोग, टीचर पूछ रहा कर लोगे। चलो इससे थोड़ा सा लेट्स प्ले विद दिस इक्वेशन।
है कि नहीं? इसको छेड़ो, देखे क्या निकलता है वहां से। So V inside, your V inside is equal to 3Q upon 8 pi epsilon naught R minus 1 upon 8 pi epsilon naught R Q R square upon R cube. So let's play this equation. So what? 1 upon 8 pi epsilon naught R square को कॉमन लो, तो 1 upon 8 pi epsilon naught R cube को कॉमन लो, होगा क्या बाबू? R स्क्वायर 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यही बचेगा ना। अगर R स्क्वायर को R क्यूब को कॉमन लोगे 8 पाई इज सेम, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इज प्रेजेंट इन बोथ इक्वेशन, दोनों में क्लियर। बट R क्यूब क्या है? यहाँ R है, यहाँ R क्यूब है, तो R क्यूब बाहर लिए तो ऊपर R स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द इक्वेशन, क्लियर। दिस इज पोटेंशियल इनसाइड द non-conducting, is the potential inside the non-conducting. So now interpret the equation, clear। थोड़ा सा और देखो इसको क्या होता है। हाँ कहाँ 1 upon 8 pi epsilon naught R ही कॉमन नहीं है, R क्यूब हो जाता तो R क्यों कॉमन लिया बेटे? R क्यों कॉमन लिया? अच्छा R क्यों कॉमन लिया मैंने? 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है यार, ठीक है। R क्यों कॉमन लिया? so this is your sphere, इसका भी दोबारा बना लेते हैं, and that will be very nice. So this is your sphere and radius is R under the point P at a distance R from the center. So what? V outside is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. V on the surface equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon। देखो पढ़ने में मजा आता है भाई जब तुम कंपैरेटिव स्टडी करते हो। कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर करो चीजों को, पहले क्या पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा, है कि नहीं? लिंक्ड है कि नहीं? जैसे होता है कि तुम्हारे बोर्ड के क्वेश्चन सबसे हो जाता है, बोर्ड का क्वेश्चन होता है। जैसे कि अगर कोई और बुक पढ़ोगे, इफ यू आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आएंगे। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रॉब्लम्स, तो उसमें क्या होता है कि एक चैप्टर से ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन है, कि एक क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक मिला देता है, और दैट इसलिए क्या होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हमें भी स्टडी वैसे ही करना चाहिए, चीज़ों का कंपेयर करो, है कि ये नहीं कि कल को जो पढ़ लिया उसको भूल जाना, आज जो पढ़ा उसको याद करना है, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाना तो पहला चैप्टर लिपापोती कर दो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें करना है, रिमाइंड करना है। और खासकर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्लियर, इसलिए कि मैं ना सारा चीज़ ना करते रहता हूँ, बीच में रिमाइंड करा फेचिंग होता है, फेचिंग कंप्यूटर में होता है APTCHING, फेच करते हैं हम लोग। वैसे क्या होता है कि तुम्हें भी माइंड में फेच करना है कि जब चाहिए, कंप्यूटर में क्या होता है जो चाहिए क्लिक करो आ जाता है, जो चाहिए क्लिक करो आ जाए। तो इसी माइंड एक बार क्या है, कंप्यूटर ही एक मशीन है, तो जो इतना इसमें करो कि जो चीज़ फेच करो, जो बटन दबाओ वो चीज़ मिल जाए, बटन दबाओ वैसा होना चाहिए, है कि नहीं? सो ये फेचिंग तुम्हारा फास्ट होना चाहिए, है कि नहीं? जो चीज़ करो तो तुरंत याद करो आ जाए। आई एम अवेलेबल फॉर जीन टाइप का कुछ, हाँ मेरे आका जो मर्जी बोलो मैं करता हूँ, है ना? इस टाइप का कुछ होना चाहिए, है कि नहीं? सो व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। So if R is equal to 0 means your point is at the center. Sorry, R is equal to 0 means P is at the center. So what? V center will be what? 3Q upon 4 pi epsilon naught R cube, क्या sorry क्या कर रहा हूँ मैं, 3 and R square। इधर ओके, इधर ओके, 3 4 pi epsilon naught R cube R square। बाबू इसको काट दो, बचेगा कितना? 3Q upon 4 pi epsilon naught R, यही है ना बाबू? So this is the potential at the center and this is the potential on the surface। तुम लोग बड़े गलत आदमी हो यार, ये 8 होगा। इसको एक बार और ही अरेंज करो, कितना होगा? 3 upon 2Q upon 4 pi epsilon R, इसको लिखो 1.5 Q upon 4 pi epsilon R। कोई दिक्कत? ठीक है बाबू? So what? This is the potential at the center, this is the potential at the center। So what? देखो इसको करते हैं अपन। So this is the potential at the center। So what? इसको लिखो, this is V outside,
एंड दिस इज v ऑन द सरफेस एंड v सेंटर कितना है बेटा, इसको यहाँ लिखते हैं अपन v सेंटर, क्लियर v। सर वेट पर दिख रहा आपका। अरे यार वीडियो ऑफ कर दिया था, तुम लोग भी ना मजे, वीडियो ऑफ था, सॉरी वीडियो ऑफ कर दिया था। सो दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड, clear, and this is the potential on the surface, and potential at the center is equal to 1.5 q by 4 pi epsilon naught r, clear। so ये देखो potential outside will be always smaller than potential on the surface, यानी surface से जैसे दूर जाओगे potential क्या होगा, क्योंकि ये क्या r है और ये क्या है ग्रेटर देन r है ना, मतलब ये क्या r इज ग्रेटर देन r, तो ये क्या होगा आउटसाइड हमेशा छोटा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। ऑन द सरफेस क्या होगा पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q ओपन r, पोटेंशियल एट द सरफेस इज फिक्स, क्लियर। नाउ एट द सेंटर पोटेंशियल एट द सेंटर इज 1.5 टाइम्स v सरफेस ना, यानी जो सरफेस का पोटेंशियल है उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि एट सेंटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, एंड नाउ एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर योर पोटेंशियल इज decreasing, your potential is decreasing। so if you are plotting the graph, you are plotting the graph, so this is r and this is potential, so at center potential will be this value ना, v center, और उसका क्या होगा जैसे जैसे जाओ क्या होगा वो ग्राफ, क्लियर, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, क्लियर। अब इधर क्या होगा बाबू आर, ये बात समझ, क्लियर। सो दिस विल बी द ग्राफ, क्लियर, दिस विल बी द ग्राफ, क्लियर। ये ग्राफ ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एक जगह क्या है बाबू, एक जगह 1 अपॉन क्योंकि देखो ग्राफ, ये ग्राफ का देखो नेचर ऐसा है क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का फंक्शन क्या है, पोटेंशियल अपना ये है ना, ये, सो दिस इज आर स्क्वायर डिपेंडेंट ना, आर स्क्वायर डिपेंडेंट, और एक जगह क्या इनसाइड में आर स्क्वायर डिपेंडेंट है और आउटसाइड में क्या है 1 अपॉन आर, सो दिस इज द कर्व फॉर 1 अपॉन आर एंड दिस इज द कर्व फॉर आर स्क्वायर। आई बात समझ, आई बात समझ, इसलिए कर्व ऐसा, कोई दिक्कत, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, बोलो, बात ही नहीं करनी, करो, चुप, लिख लिया बाबू, लिख लिया, 3D पढ़ लिया तुम लोगों ने, हाइपरबोला पैराबोला ये सब पढ़ लिया, सर्किल, हाँ बोलो मैथ्स वालो, 3D पढ़ लिए हो, हाइपरबोला पैरा, हाँ गुड। सो द क्वेश्चन ये बाबू कि दिस इज योर कर्व, से इसमें हाइपरबोला रीजन कौन होगा और पैराबोला रीजन कौन होगा बताओ, इसलिए कि कर्व ऐसा थोड़ी है यार, कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, ऐसे है फिर ऐसे है, तो किस रीजन में हाइपरबोला कर्व है और किस रीजन में पैराबोला कर्व है बताओ। सेंटर से वहां तक हाइपरबोला, कहां से कहां, सेंटर से वो पॉइंट, मतलब सेंटर से सरफेस तक हाइपरबोला और उसके बाद पैराबोला, और ये पैराबोला, और कोई, और कोई, और कोई बताएगा कुछ, हाँ और कोई बताएगा कुछ, श्रुति, अंकित, महवीश, अभिषेक, स्नेहा, क्या है ये बताओ, यही पढ़ते हो, हाइपरबोला पैराबोला नहीं आता, पढ़ रखे हो ना, इक्वेशंस भी याद करो यार, डिपेंडेंस कैसे होता है, सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, फंक्शन डिपेंडेंट क्या होता है उसका, भाई वालों को भी नहीं देना, भाई वालों को नहीं, बताओ तुम लोग ना डूब मरो, बाल्टी में पानी भरो और भाई को बोलो गर्दन डूबा है उसमें, डूब मरो, गलत बात नहीं। देखो अब मैं भी नहीं बता रहा, जाके गूगल करो, बुक पढ़ो, खास कर मैथमेटिक्स टीचर, ये भी है बाबू कर वैसा है, क्लियर। तो देखो क्या बना रहा हूँ,
सो देखो बाबू ऐसा है, हाँ सो जब ऐसा होने के बाद ऐसा हो रहा है, कहीं पॉइंट है, इस पॉइंट पर कर्व ऐसा है, यहाँ से फिर ऐसा है, तो ये क्या है, ये बाउंड्री वाला था ना, यानी कि ये बाउंड्री यानी कि सरफेस के इधर कुछ और डिपेंडेंस है और सरफेस के इधर कुछ और डिपेंडेंस है, यानी कि जहां पर कर्व का नेचर चेंज हो रहा है वो क्या होगा बाबू, r इक्वल टू r और r इधर और b इधर, तो ये सरफेस होगा, उसका पोटेंशियल यहाँ लिखोगे, कोई दिक्कत, यहाँ सेंटर, यहाँ सरफेस और ये। अब बताना तुम्हें कि ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये सरफेस हाइपरबोला, ये हाइपरबोला, वेरी इजी एंड दिस इज योर होमवर्क। सो गो एट योर होम, डू सम मैथमेटिक्स एंड टेल मी द आंसर, मुझे बताओगे और डू मरो, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता था। एंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाई इज ग्राफ इज लाइक दिस, नहीं हम सर ये भेज दीजिए ना, सर दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं फोटो किसी भेजता हूँ। क्लियर, इरेज करूँ, इरेज करूँ ना, तो बाबू इरेज कर रहा, मैं आगे करा रहा हूँ। तो दूसरा वाला मेथड कर लेते हैं, विल अप्लाई दिस मेथड, करना है कि नहीं, क्या क्या करूं, आर यू इंटरेस्टेड, दूसरा मेथड करा दूं, यस सर। गुड, सो व्हाट दिस इज योर, सो पुट हियर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and dq upon r integration. Clear? So this is your sphere and there is a point, there is a point at the distance r from the center and the question is what is the exact point P. So what इस स्क्वायर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। Clear? So this is your फर्स्ट स्क्वायर, ये यानी कि एक स्क्वायर ये है बाबू और एक स्क्वायर ये, क्लियर, यानी कि इतना हमने काट के निकाल दिया, तो ये मटेरियल है और ये क्या है बाबू, खाली है और ये किधर, ये पॉइंट क्या है, यहाँ है और पॉइंट यहाँ, ये वाला निकाल लिया हमने, क्लियर क्लियर, आई बस ये वाला निकाल दिया, मतलब कि दिस इज द होलो, यहाँ होलो है, अब दिस इज सॉलिड, यानी कि आर रेडियस से हमने काट के निकाल दिया, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस भी आर, कोई दिक्कत, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ। अब क्या होगा, इस पॉइंट को पोटेंशियल फाइंड करना, सो क्या होगा, फॉर दिस स्फीयर, फॉर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलर स्फीयर, सो फॉर दिस स्फीयर पॉइंट P लाई ऑन द सरफेस ना, सो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनसाइड द सरफेस, क्लियर, q इनसाइड द स्फीयर अपॉन r, यही बात। अच्छा इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, अब ये पोटेंशियल इसके लिए हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसका भी तो पोटेंशियल कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि डायरेक्शन होता था कैंसिल हो जाता था, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी ना, तो कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी पोटेंशियल होगा, इसका भी पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल होगा ना, यहाँ मींस योर v इज द v1 प्लस v2, इसका हो जाएगा v1, इसका हो जाएगा v2, यानी कि v1 और v2 फाइंड करके और सम ले लेंगे, दैट विल इज द होल पोटेंशियल। सो क्या होगा, v1 क्या होगा, v1 इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q प्राइम अपॉन r, q प्राइम क्या है, इसका चार्ज क्या है, q प्राइम, और q प्राइम होगा क्या होगा, q प्राइम हो जाएगा 4/3 पाई r³ इनटू रो ना, और रो के बदले क्या लिखोगे, वो वाला लिखोगे ना, अरे q प्राइम है, रो के बदले को लिखोगे तो कुछ आएगा ना मैथमेटिक्स का, होता ही है, क्लियर, मैथमेटिक्स कर लो ना, हो जाएगा 4/3 क्या लिखा है मैंने, 4/3 पाई r³ यार, तो 4/3 पाई r³ इंटू q अपॉन 4/3 पाई r³, यही होगा ना, यही होगा ना, तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, q r³ अपॉन r³, ये होगा, दिस इज द चार्ज इनसाइड, क्लियर, दिस इज द चार्ज इनसाइड। से बात v1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q प्राइम को क्या लिखेंगे बाबू, q r³ अपॉन r³ r, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q r² अपॉन r
Q. Is that okay? This is the potential at point P due to the inner sphere. Now we'll find potential due to this spherical shell and take their sum and that is the total potential. Is that okay? So अब देखो बाबू इसका काम हो गया. Now this ये इन डाल बेटा इन इसमें नहीं. So we will so this is a spherical shell. This is the spherical shell. Spherical shell का inner radius क्या है बाबू? R और outer radius क्या है? outer radius क्या है? कैपिटल आर ना, यही है ना, क्लियर. अंदर इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है. तो क्या होगा? दिस स्फेरिकल शेल इज मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर शेल. यानी कि स्फेरिकल शेल बनाना है तो क्या क्या होगा? मान लो कि एक स्फीयर बनाना है तो स्फीयर क्या है कि जैसे एक छोटा सा स्फीयर बनाया, जैसे स्फीयर बनाना है इतना बड़ा, तो क्या करोगे? पहले छोटा सा सेंटर लोगे, यहाँ से फिर स्फीयर एक बड़ा सा इसमें स्फेरिकल शेल ऐड करोगे, फिर एक और बड़ा ऐड करोगे. ऐड करते करते क्या हो जाएगा? मतलब एक स्फीयर इज मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल्स ना. यानी कि ये जो होगा बाबू, ये स्फेरिकल शेल है क्या? ये छोटे छोटे स्फेरिकल शेल से मिलकर के बना होगा. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पे dx रेडियस का, सॉरी dx थिकनेस का एक क्या ले लेंगे? स्फेरिकल शेल ले लेंगे और उसको जैसे क्या करेंगे? यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और क्या करेंगे? पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, मिल जाएगा ना. क्लियर. तो मान लो कि ये है छोटा सा, क्लियर. तो x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का है, तो इसका चार्ज कितना होगा? स्फेरिकल शेल का चार्ज हो जाएगा dq = 4 pi x² dx into रो. यही चार्ज हो जाएगा ना, which is equal to 4 pi x² and रो के बाद में 4/3 pi r³ dx ना. क्या हुआ? रो के बाद में क्या लिखोगे यार? q अपॉन 4/3 pi r³ एंड dx ना यही लिखोगे ना. अब 4 pi से 4 pi गायब हो जाएगा, बचेगा कितना? ये क्या है? इनटू है ना. तो x² dx अपॉन r³, यही आएगा ना, यही आएगा. देख लो एक बारी. हाँ, और 3 ऊपर चला जाएगा. क्लियर. 3x³ क्लियर, यही होगा ना. तो क्या हो जाएगा? ये 3³ x² dx अपॉन r³. तो दिस इज dq. ये एक बार देख लो, गलती नहीं होना चाहिए. 4 pi x² dx इज द वॉल्यूम इसका, और डेंसिटी वाला डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? या वॉल्यूम इज स्मॉल सो चार्ज विल बी स्मॉल. तो क्या होगा? 4 pi x² एंड इन प्लेस ऑफ रो यू आर राइटिंग चार्ज अपॉन वॉल्यूम. तो q इज द टोटल चार्ज और वॉल्यूम क्या है? 4/3 pi r³ और dx. अब काट के करोगे तो 4 pi से 4 pi गायब हो जाएगा, बचेगा कितना? x² dx. तो x² dx अपॉन r³ और 3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और q बचेगा, यानी ये बचेगा. क्लियर. ये दिस इज द dq. तो अब क्या करेंगे? ये हो गया. एक बार लिखो करा. तो कर लिया बाबू. कर लिया ना ये? बोलो. यस सर. गुड. समझ आया कि किसी को कुछ डाउट है यहाँ से अभी? So your V is equal to V1 plus V2 और V1 है बेटे, V1 लिख लो यहाँ कितना बाबू? 1/4 pi epsilon naught Q r² अपॉन r². ये हो गया ना. डायमेंशन हमेशा देखते रहना, डायमेंशन हमेशा सेम आना चाहिए. अब V2 फाइंड करना है बाबू. तो ये क्या हमने क्या किया था? कितना टाइम है बेटे अपने पास? सो बेटे क्या करना है? ये हो गया बाबू. ये क्या है? स्फीयर है. ये इसका रेडियस कितना बाबू? इसका रेडियस r था और फिर एक बड़ा वाला स्फीयर था, उसका रेडियस कैपिटल R था. तो हमने एक डिस्टेंस में क्या लिया था बाबू? एक स्फेरिकल शेल लिया था. बना ले रहा पूरा, मैं आधा बना ले रहा हूँ. इसका थिकनेस एक डिस्टेंस में यहाँ से, और थिकनेस क्या था बेटा? dx था. तो dq कितना आया था? बोलो. dq कितना आया था? 3q x² dx अपॉन r³. तो ये क्लियर बाबू. ये आता dq. तो होगा क्या? मतलब ये कि dq है. अब देखिए बात बताओ. टेल मी इफ there is a sphere
एंड और क्या बाबू, इस पे चार्ज क्यू है और सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, एंड दिस इज द होलो वन. So this is a hollow sphere. This is a hollow sphere, and charge is on the surface, and the question is find potential at point P, which is at a distance r from the center. So Vp क्या होगा, कौन बताएगा? This is a hollow sphere, and charge is on the surface. This may be conductive or non-conductive. It doesn't matter. There is no any charge inside the volume. Charge is only on the surface. This is the hollow one. So what is the potential inside the sphere at a point P, which is the at a distance r from the point P? कितना होगा पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा, यानी Vp इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस. जो सरफेस पे होता है यही होता है, मैंने क्लास रखा है क्लास में. इसका मतलब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, q अपॉन रेडियस r. तो ये इसके लिए क्या है, फॉर दिस स्फेरिकल सेल, दिस इज अ स्फेरिकल सेल एंड पॉइंट P लाई इनसाइड स्फेरिकल सेल. तो उस एट अ पॉइंट, at this point electric field potential due to spherical shell will be equal to the potential on the surface ना, यानी इसका surface जो potential होगा उसी के equal होगा इस point potential, because this point P lie inside that spherical shell, small spherical shell. इसका मतलब क्या होगा कि potential D यानी dV is equal to 1/4 pi epsilon naught dq upon x, dq upon x, which is equal to 1/4 pi epsilon naught, and in place of dq you will write 3q square dx upon x. Is that okay? Is that okay? Which is equal to 1/4 pi epsilon naught 3q dx. This is the potential dV, यानी कि due to this spherical cell potential is dV. So now potential due to whole sphere, whole part, that will be what? So that will be integration v is equal to integration dv, which is equal to integration कहाँ से कहाँ होगा, x is varying from small r to capital R ना, your x is varying from small r to capital R. So r to r 1/4 pi epsilon naught and 3qx dx, which is equal to 3q upon 4 pi epsilon naught 3q 4 pi epsilon x dx, integration limit r to r, so 3q upon 4 pi epsilon naught, and this is x square upon 2 r to r, which is equal to 3q upon 4 pi epsilon naught r 2 को बाहर ले लो बाबू, तो this will be 8. So what, r square minus r square. Is that okay? Is that okay? So this is the potential inside the point P due to the hollow one. इसके वजह से, इसको वजह से clear. So then total potential V will be the sum of the two ना. So this is your V2, this is your V2, this is your V2. So what, करो यार यहाँ से V is equal to V1 plus V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught 3 r square upon r cube plus 3q upon 8 pi epsilon naught r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. क्या हुआ इधर, कहाँ से छोड़ा, यहाँ इसमें r क्यूब, तो यहाँ भी r क्यूब आएगा, तो सब में r क्यूब आएगा. हाँ क्लियर बाबू. तो यहाँ भी r क्यूब आएगा बेटे, तो यहाँ भी क्या होगा r हाँ क्यू आर स्क्वायर अपॉन. क्लियर आ रही बात समझ. तो अब इसको मैनिपुलेट करो ना, आएगा मैनिपुलेट करो. क्लियर, मैं इरेज करो, लिख कर मैं इरेज करता हूँ. सो कर लिया बाबू, कर लिया सबने, करो इरेज, बोलो. Yes sir. So let's play with this equation, है कि नहीं. देखो उसको क्या मिलता है उससे. So this is your equation, and I will play with this equation. So V is equal to
V1 plus V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q R square upon R cube plus 3Q upon 8 pi epsilon naught R cube into R square डॉट लिख दिया माइनस 3Q R स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। सवाल बाबू क्या होगा ये 3Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब R स्क्वायर, इसको लिखो ऐसे क्लियर क्लियर। फिर होगा क्या, अब देखो इसको ये माइनस है प्लस दे आर सेम पे ये क्या होगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब एलसीएम हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 2 विथ प्लस साइन और माइनस 3Q R स्क्वायर, यही होगा ना। बोलो होगा ये, इतना तो आता है तुम्हें, इतना तो मैं कर सकता हूँ स्किल से बाबू। देखो यहाँ से देखो अपन ले लेंगे Q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब कॉमन ले लो दोनों में, तो बचेगा क्या 3R स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा और माइनस ये क्या होगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर। R ये बात समझ, क्योंकि क्या है माइनस हो जाएगा ना 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये क्या है Q और 8 पाई एप्सिलॉन R से कॉमन ले तो बचेगा खाली R स्क्वायर ना। तो देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे पहले किया था, आया पहले जैसा आया कि नहीं आया बताओ, आया। So this is the potential. So your life, your choice. Again, your life has given two choices, either this method or either that method, है ना। दोनों से कोई मेथड यूज कर लो, लेकिन आना दोनों चाहिए, क्लियर आना दोनों चाहिए, क्लियर कोई सा रिजल्ट करके। दिस इज ऑल्सो इजी वन, दैट इज ऑल्सो इजी वन, दोनों इजी है। इसमें करोगे तो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, इनसाइड द सेल कैसे पोटेंशियल कांस्टेंट ऑफ फ्लैट दिमाग का। आर ये बात समझ, गॉट माय पॉइंट। ये किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो अभी। नाउ आई विल पॉज द वीडियो, मतलब क्लास इज ओवर। You have any doubt? You have any doubt? Good. So कर लो बेटा, and tomorrow we'll discuss electric potential due to a cylinder. Potential due to a, this is your next topic, potential due to cylinder. And this is a very crucial one. So don't miss the class. Clear? Don't miss the class. Clear? So कर लो बेटा.